ہم اسٹیک ہولڈر کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو ہے وہ جو بھی پوائنٹ ہوتا ہے اوپینین اسکیٹرڈ ہوتا ہے تو ڈائریکشن بھی ایک ہونی چاہیے. تو اوپینین ہمارا پہلے ہم اپنا اوپینین بلڈ کریں کہ یہ ہمارا اوپینین آج، تو اس پہ سب نے اسٹینڈ کرنا نمبر 1. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو میں آج کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں، جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑا لائک تحصیل اقدام آپ نے کیا، اسپیشلی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور اس میں میری ایک ہمبل سی سجیشن ہے، اگر آپ کائنڈلی نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ رہ کے بہت کچھ سیکھا. شیڈول کروانا بہت ضروری ہے، تو یہ مگر یہ ہے کہ اس کے یہ شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میں آپ کے فیوچر چیلنجز کیا ہے سیکٹر کے، وہ آپ نوٹ کریں. مسائل ابھی کھلے ہیں ہمارے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، وہ جیسے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے ایک تو ہم لوگ اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے تعارف ہوا، پھر بنا کے ہمارے ساتھ چلیں اور ہم ان سے میٹنگ کریں. ہاں جی، ہم جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی نہیں جی وہ تو آئے نہیں ہمارے اس میں، بھائی وہ کیسے آئیں گے جب تک ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ اگر ہم اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ بہت افیکٹو ہوگا. جزاکم اللہ خیر. انتہائی اختصار کے ساتھ میری پوری قیادت جو ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتی ہے یہاں موجود ہے. الحمدللہ میں یہ عرض کروں کہ 6 جون سے پہلے تقریباً 3 ماہ تک اس کورونا کے نتیجے میں ہماری قیادت کی جب آواز ہمیں نہیں سنائی تھی، تو 6 جون کو لاہور کے اندر نافع کے پلیٹ فارم سے پروگرام ہوا. آرگنائزیشن کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. 7 جون کو جب ہم اسلام آباد پہنچے تو الحمدللہ یہ میسیج آ چکا تھا ہمارے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ ہم ایس او پی تیار کر رہے ہیں اور ادارے نے یہ طے کیا، ہم نے اسکول کھول دیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ ہم نے 15 اگست کو کلیکٹیو یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ اب اسکول بند نہیں ہوں گے. جیک نے یہ جو ایفرٹ کی ہے، ایک تو ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت ایفرٹ کی. دیر آیت درست آیت، لیکن بہت اچھی ایفرٹ ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میں اسٹیپ ہونا چاہیے، یعنی کورونا کا جو پہلا پیریڈ تھا اس میں 3 ماہ کے بعد اسٹیپ لیا گیا، اور ابھی بھی کورونا کا اگین جب اداروں کی بندش کا معاملہ ہوا تو اس اسٹیپ کو تھوڑا سا دیر سے لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیک ہی کے پلیٹ فارم سے متحد ہو کے کام کرنا چاہیے. لیکن اسٹیپ لینے میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں طے ہوں اس کو 100% فلفل کیا جانا چاہیے، اس پہ عمل کیا جانا چاہیے. یعنی 20 جولائی کو نافع کے پلیٹ فارم سے اسلام آباد پریس کلب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابق بنگش پریزیڈنٹ نیشنل ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولوں نے تمام جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں ان کے عہدیداران کو اکٹھا کیا. ایک پوائنٹ ہی جنگوں کی جو نتائج ہیں اس کو بدلتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر ابھی دوران جنگ ہے. اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر سمجھ لیں تو اٹ مینس کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہیں. ابھی ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. شارٹ ٹرم پالیسی یہ ہے کہ ہم والے تھے، یونٹی کو سب سے پہلے کور اپ کرنا پڑے گا. اور سپریم کونسل لانگ ٹرم پالیسی میں سپریم اساتذہ ہیں، ان کی ایک سپریم کونسل ہونی چاہیے. اس میں ایون سکولز کے ٹیچرز کو بھی شامل کریں، اس میں پیرنٹس کو بھی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ لوگوں کی ایجوکیشن ہو تو ہمیں انفارم کریں، ہم بھی آئیں، ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں. تو ایجوکیشن سے شارٹ ٹرم پالیسی میں خدا را کرسیوں کی ریس سے نکلیں. دونوں صورتوں میں ہم اپنے اسکول کھول دیں گے. یہ ٹھیک ہے جی، اس پہ اتفاق ہے تو آپ اگر ہاتھ کھڑے کر دیں. زفران صاحب لکھ لیں، یہ لکھ لیں. اگلی بات اس کے لیے جو ہے وہ یہ تھی کہ تجویز یہ رکھی گئی تھی کہ اگر 11 جنوری کو گورنمنٹ اعلان نہیں کرتی اور ہم اسکول کھول دیتے ہیں اور کسی اسکول کے خلاف کوئی گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے تو اس کے لیے ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. ہمارا یہ تجویز ہم نے رکھی تھی آپ کے سامنے کہ اس صورت میں ہم اس کا بھرپور احتجاج کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، ہر فورم پر اس کے ساتھ جائیں گے. اور جس اسکول کو بلاک ہوگا، جیسے بہت سارے دوستوں نے رائے دی ہے کہ ایک کال پہ ساری ایسوسی ایشن جو آج سپریم کونسل بنے گی وہ ساری اس اسکول پہ موجود
अगर मुनासिब समझते हैं तो इसके आज डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप मुनासिब समझते हैं कि इन सारे जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले थे अलहदा से हम मीटिंग रख सकते हैं। तालीमी सेशन के हवाले से कह रहे थे जी कि जो प्रोलॉन्ग हुआ है उसमें जो बच्चों का नुकसान हुआ है मजीद प्रोलॉन्ग करना जा रहे हैं, उसको किस तरह से कवर किया जा सकता है, तो उसके लिए हम कोई मुश्तरका लाए अमल बनाना चाहते हैं। और उसके लिए मेरा एक पूरी भरपूर मीटिंग चाहिए, उसके लिए सब की राय चाहिए। हर बंदे का अपना अपना एक नुक्ता नज़र है। कुछ उसको छोटा रहना देना चाह रहे हैं, कुछ उसको पूरा करना चाह रहे हैं। जो नंबर ऑफ डेज स्टैंडर्ड है एक एकेडमिक ईयर के, वो पूरे होने चाहिए मेरे ख्याल में। तो वो कैसे हो सकते हैं, उसको जिन्हें करने के लिए डिस्कशन की भरपूर ज़रूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप इस वोटिंग पे छोड़ दें या से एकदम उसके बारे में कोई फैसला कर दें। पहले भी दोस्तों की राय है कि हम जल्दी में फैसले करते हैं और फिर वो काबिल अमल नहीं होते, तो इसलिए वो रह जाते हैं जी। तो मेरी ज़ाती राय तो ये, अगर किसी और को और कोई चीज़ शामिल करना चाहता है तो हमें सिर्फ फिलहाल 11 जनवरी पे ही फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। और ये तो दरमियान में टाइम बच रहा है हमारे पास, जो दोस्त कह रहे हैं 4 जनवरी कर देना चाहिए। हमें 10 जनवरी तक अरबाब इख्तियार के साथ मीटिंग्स करनी चाहिए और उन्हें एक वाज़ेह और डटोक मौक़िफ़ दे देना चाहिए कि जी हम अपना सर कटा देंगे, जान दे देंगे, स्कूल बंद करने हैं, जो दिल है कर लें, अभी कर लें, हमने हर सूरत में स्कूल खोलने हैं। उसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। ये जो ट्वीट का सिस्टम आजकल चला हुआ है उनको रीट्वीट कर सकते हैं। हर बंदा अपने लेवल पे ये समझे कि मैंने ये काम करना है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है। तो इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। बाकी जो लाया अमल है वो सुप्रीम काउंसिल तय कर लेगी कि हमने किससे किस वक्त किस तरह से मिलना है और उसके साथ क्या बात करनी है। जी उसका जो पहला इजलास है इंशाल्लाह वो हम 1-2 दिनों में करेंगे, ठीक है जी, जिसमें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुलाकातें जो हैं वो हम उनको फाइनल करेंगे उस मीटिंग के अंदर और फिर उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम उसको आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जब वो परसों इंशाल्लाह ताला हम तय करते हैं उस मीटिंग को किसी भी वेन्यू को रख के, और उसमें फिलहाल मैं और नासिर साहब उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर सुदूर बैठ के आपस में उसके लिए जो भी कोऑर्डिनेशन उसके अफराद तय करते हैं वो करके, तो हम उसका अगला काम ये करेंगे कि एक हम 11 जनवरी को स्कूल खोलेंगे। नंबर 2 हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले करके अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना है। नंबर 3 असद उमर साहब और दीगर जितने भी वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से हमने हमारी सुप्रीम काउंसिल जाके मुलाकातें करेगी जी। इस पे सबको इत्तेफाक है जी, ठीक है जी। तो अब कोई सवाल? जी सर। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम एसोसिएशंस, बड़े सिस्टम्स और स्टेक होल्डर्स जो है उनकी मुतफिका राय से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ने जो खुद डेट दी हुई थी 11 जनवरी की 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी इस्लामाबाद में हर सूरत खोल दिए जाएंगे। ना अगर गवर्नमेंट इसका ऐलान नहीं करती है, हम इंशाल्लाह उनसे पहले उनको कायल भी करेंगे, उनसे मुलाकातें भी करेंगे और उनके सामने सारे हकाइक भी रखेंगे। और हमने इसके लिए एक जो है वो सुप्रीम काउंसिल रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम सिस्टम्स, वाट एक्सला तमाम सिस्टम्स और तमाम एसोसिएशंस के सदूर जो हैं उन पर मुश्तमिल एक सुप्रीम काउंसिल बना दी है जो इस पूरे ऑपरेशन को इंशाल्लाह देखेगी। और अगर गवर्नमेंट कोई भी हमारा इदारा 11 जनवरी को हम जब खोलेंगे सील करती है और अनाउंस नहीं करती है तो इंशाल्लाह ताला हम उसके लिए एहतजाज भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम बाहर क्लासें भी लगाएंगे जो दोस्तों की राय आई है, और उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला जो है वो भरपूर किस्म का अगर कहीं कोई एक्शन होता है तो हम पूरी ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की एसोसिएशन जो है उस इदारे के साथ खड़ी होंगी। और इंशाल्लाह ताला कोई एक इदारा वो नहीं होगा, अगर कोई एक इदारे का बंदा गिरफ्तार होगा या उसके खिलाफ एक्शन होगा तो हम सब इंशाल्लाह ताला अपने आप को पेश करेंगे। और इंशाल्लाह इस इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब सब कुछ खुला हुआ है तो तालीमी इदारे वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ SOPs पर अमल हो रहा था।
आपने उनको बंद कर दिया। अब वो बच्चे जो हैं वो बाहर पार्कों में घूम रहे हैं, वो गलियों में घूम रहे हैं, और वो कोरोना को फैलाने का जो है वो इससे ज्यादा जरिया बन रहे हैं। हम इसलिए गवर्नमेंट से आज का ये पूरा फोरम जो है ये गवर्नमेंट से गुजारिश भी करता है कि जो आपने ऐलान किया है, हमने उसका एहतराम भी किया उस ऐलान का। अब 11 जनवरी को मुकम्मल एसओपीज के साथ हम पहले भी इदारे चला रहे थे, अब भी इंशाल्लाह इदारे चलाएंगे। आपको तजवीज़ गवर्नमेंट को हम ये देते हैं कि जिस तरह पहले वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पे अमल करते हुए इदारों को जहां कोई केस निकलता था उस इदारे को कुछ दिनों के लिए बंद करते थे, इस हिकमत अमली को तो अपनाएं, लेकिन ये मुकम्मल जो इदारों का जो है ना वो क्रैकडाउन और शटल डाउन है, इसको हम तस्लीम नहीं करते हैं। इंशाल्लाह ताला आज का फोरम ये ऐलान करता है कि 11 जनवरी को हम हर सूरत पिंडी इस्लामाबाद के तमाम इदारे इंशाल्लाह ताला खोल देंगे जी। कोई दोस्त अगर सवाल करना चाहते हैं तो वो कोई भी दोस्त जवाब दे। ये बाद में आपको व्हाट्सएप कर देते हैं जो मुश्तरका लामिया है जी मीडिया को। कोई दोस्त सवाल करना चाहें अगर मीडिया के जी, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हाफिज साहब खाना तैयार है जी? जी अच्छा जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उसको रीशेड्यूल करना चाहिए, नादर से रीशेड्यूल करवाना चाहिए कि क्योंकि पूरा अल्लाह का एहसान ये है कि 15 अगस्त को हमने स्कूल ओपन किए। जो दोस्त ये बात कहते हैं कि तंजीमें ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि हम से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई। तमाम एसोसिएशन से हम सारे उसके जिम्मेदारान बैठे हैं। ज्यादातर तजवीज़ जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आई हैं। मेरा हाल है उसको अगर मौखर कर दिया जाए, बाद में किसी और मीटिंग में उसको डिस्कस कर लिया, तो फिर जो आज का एजेंडा था उस पर बात कर ली जाए। जो लोग 11 जनवरी को स्कूल खोलने के लिए इत्तेफाक करते हैं वो अगर हाथ खड़े कर दें तो पता चल जाए कि अगर किसी को इख्तलाफ है तो क्यों है, वो अपनी राय दे सकता है। स्टेप ले सकें, लेकिन अलायंस के साथ साथ इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि जो दोस्त अलायंस बना रहे हैं और फिर आज जैसे हम उठेंगे तो यकीनन वो एक कमेटी भी इसके हवाले से तशकील करेगी। नाफे के प्लेटफॉर्म से हम बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे, न सिर्फ खड़े होंगे बल्कि इंशाल्लाह वो हमें पहली सफों में पाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमरान सारे जो मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर हैं उन पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम काउंसिल्स के मेंबर्स अपनी सिफारिशात NCOC और वजीर तालीम में रिटन फॉर्म में देंगे और इनसे मुज़ाकरात भी करेंगे। 27 से पहले स्कूल्स 11 जनवरी को खोल दिए जाएंगे ताकि बच्चों को मजीद तालीमी नुकसानात से बचाया जा सके। स्कूल्स 8 माह से बंद रहने की वजह से जो नुकसानात हुए हैं इनका इजाला किया जाए। 10 जनवरी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा अगर गवर्नमेंट 11 जनवरी को अनाउंस नहीं करती है तो। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात के रिजल्ट इंतहाई खराब रहा है जिसकी वजह लॉकडाउन है। इसके लिए स्कूल्स को 11 जनवरी को हर हालत में खोला जाए। सोशल मीडिया पर स्कूल सोशल सिक्योरिटी और EOB की जो कंट्रीब्यूशन है उसको 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर स्कूल खोलने के लिए भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। 27 जनवरी से पहले NCOC की सजेशंस जनवरी लिखा दिसंबर 27 दिसंबर से पहले NCOC को सजेशंस जो है ना रिटर्न दे दी जाएंगी और तबाहाल तालीमी इदारों को बिला सूद कर्ज दिए जाएं। ये आज का मुश्तरका लामिया और हमारे मुतालबात हैं जी। तो इंशाल्लाह बाकी इसका जितना अगला एक्शन प्लान होगा